Hello students, welcome to the class of economics. Yesterday we have seen the consumption function. आज हम saving function के बारे में पढ़ेंगे. So students, saving होती क्या है? Suppose you get pocket money और you get the income of 100 rupees और आपने उस 100 rupees में से 70 rupees खर्च कर दिए. You have consumed 70 rupees out of 100 rupees income and whatever money left with you is called your saving. यानी जो पैसे आपने खर्च नहीं किए, इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया, वो आपकी सेविंग कहलाता है. सो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट यूज्ड फॉर कंजम्पशन. वी कैन से सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन. सो लेट्स डिफाइन सेविंग फर्स्ट. So what is saving? So that part of income which is not used for consumption is called saving. So saving is equal to income minus consumption, means it is the difference of income and consumption. If we subtract consumption from income, we get the saving. Saving is the function of income, means saving depends upon income. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकम में चेंज आता है, सेविंग में भी चेंज आता है. और किस प्रकार का चेंज आता है? Because saving is the positive function of income, means saving is positively depend upon income. As the income increases, our saving will also rise, and with the fall in income, the saving will also fall. So this is the relationship between the income and the saving. So this saving schedule is given here. Savings are calculated with the help of income and consumption. If we subtract consumption from the income, we get the saving schedule. So you will see when income is 0, consumption is 10, the saving is minus 10. So what you observe from this कि जब आपकी इनकम 0 होती है तो जो कंजम्पशन होती है 10, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाती है. और 0 लेवल इनकम पर जितनी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, सेविंग माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है. यानी अगर 0 लेवल इनकम पर 10 कंजम्पशन है, 10 कंजम्पशन है, 10 रुपीज आर कंज्यूम्ड एट 0 लेवल ऑफ इनकम, सो सेविंग विल बी -10. सो दिस विल बी कॉल्ड डिस सेविंग. कल हमने पढ़ा था कि जब 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो ऑटोनोमस कंजम्पशन की जाती है, इट इज फ्रॉम योर डिस सेविंग, from your previous savings. So savings are here -10. So that is the first point. The savings remain negative in the initial stage up till the income is less than consumption. जब तक इनकम कंजम्पशन से कम होती है, तो पहले दो लेवल पर जब इनकम 0 है और जब इनकम 10 है, तो यू सी द इनकम इज लेस देन कंजम्पशन. तो उस पॉइंट पर जो सेविंग है, इट इज नेगेटिव, -10, -5. और जब इनकम लेवल 20 हो जाता है, तो वहां पर कंजम्पशन भी 20 हो जाती है. दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. यानी व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, यानी जितनी आपकी इनकम है वो सारी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो एट दिस लेवल द सेविंग्स आर 0. सो व्हेन income is 0, saving is equal to minus autonomous consumption, that we have seen in the first point. So savings are the difference of income and consumption. So a point comes when income level is equal to consumption. So this is called the break even point. At this point the savings are 0. So you can see 20 minus 20, the savings are 0 here. After that point saving become positive. तो उसके बाद सेविंग पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जो इनकम होती है वो कंजम्पशन से आगे निकल जाती है, यानी इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो जाती है. तो केन्स का मानना ये है, इट इज़ द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि ये मनुष्यों का साइकोलॉजिकल लॉ है कि जब इनकम एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमारी ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसका सारा का सारा पार्ट कंज्यूम नहीं करते. सम पार्ट ऑफ दैट इनकम विल बी सेव्ड. सो दैट्स वाई सेविंग स्टार्ट्स राइजिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर point, after a particular level of income. Next part, propensity to save. जो ये स्केड्यूल यहाँ पर शो किया गया है, ये प्रोपेंसिटी टू सेव है, मींस सेविंग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कितनी कितनी रहेगी, दैट इज कॉल्ड द प्रोपेंसिटी टू सेव. सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. प्रोपेंसिटी टू सेव दो प्रकार की होती है. द वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. So average propensity to save, it is equal to saving upon income. So we can say it is the ratio of income saving to the income level of the economy. It is S upon Y.
So it is the ratio of saving to income. Next, average propensity to save. So its value generally remains between 0 and 1, लेकिन जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, क्योंकि उस टाइम पर सेविंग नेगेटिव आएगी। तो सेविंग, नेगेटिव सेविंग को यदि हम इनकम से डिवाइड करेंगे तो नेचुरली एपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। लेकिन जनरली इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है, लेकिन जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। एपीएस इज नेगेटिव एट दैट पॉइंट। So the value of APS shows that how much percentage of income will be used for saving in the economy. So APS की वैल्यू क्या शो करती है कि जितनी हमारी इनकम है उसका कितना परसेंट भाग हम बचा लेते हैं। एक इकॉनमी की लोग अपनी इनकम का कितना परसेंट लगभग बचा लेते हैं। We can find the value of APS here. When income is 40, you can find the APS value. When income is 40, the saving is 10. So what is the value of APS? It is 10 upon 40, that is 0.25. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जब इनकम लेवल 40 है तो 40 रुपीज़ का लगभग 25% लोग बचा लेते हैं। सो 40 का 25% इज इक्वल टू हाउ मच? It is 10 rupees. So 10 rupees the saving. Now the marginal propensity to save. So marginal means change. जैसे marginal propensity to consume था, वैसे ही marginal propensity to save है। marginal propensity to consume क्या था, अगर आपको पता है, लास्ट ईयर का, लास्ट टाइम का याद है यदि आपको, so it is change in consumption upon change in income. So marginal propensity to save will be the ratio of change in saving to change in income. Okay, so it is delta S upon delta Y. तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात। तो बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिमेन्स बिटवीन 0 and 1. So the marginal propensity to save shows how much part of changed income will be saved in the economy. कि जितनी इनकम में चेंज आया है उस चेंज का कितना परसेंट इकोनॉमी में बचा लिया जाएगा। We can find some value from this table. So find the value of MPS when income increases from 40 to 50. जब इनकम 40 से 50 हो जाती है तो आप देखेंगे बचत में कितना चेंज आया है। बचत में आया है 5 चेंज और इनकम में चेंज आया है 10. सो MPS विल बी 5 upon 10. 5 upon 10 इज 0.5. यानी इनकम जितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है इनकम यहाँ पर 10. सो 10 का 50% भाग सेव कर लिया जाएगा, यानी 10 का 50% यानी 5. यू कैन सी द इनकम, द चेंज इज 5 हियर. ओके, so it means 50% of change income will be saved, that I have told you. Now we shall draw the saving function or saving curve with the help of consumption curve. इसको आपने कल देखा होगा consumption curve हम कैसे draw करते हैं. So I will not explain the drawing of consumption curve again. So if you want, you can watch the previous video. So consumption function is given by, that is important here. You must know it is a plus by. इसमें a की वैल्यू क्या है? Here a is autonomous consumption. Autonomous consumption means when income level is 0, whatever the consumption is, that is a. And plus b. B stands for marginal propensity to consume and y stands for income. So this is consumption function. Red line is the income line, which is 45-degree line. हमने कंजम्पशन वाई एक्सेस पर लिया है, इनकम एक्स एक्सेस पर लिया है. सो ठीक इसके नीचे हम सेविंग कर्व ड्रॉ करेंगे. कंजम्पशन कर्व के ठीक नीचे सेविंग कर्व ड्रॉ किया जाता है. इसके वाई एक्सेस पर हम सेविंग लेंगे, लेकिन वाई एक्सेस को नेगेटिव वाई तक एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होती है तो सेविंग नेगेटिव होती है. दैट्स वाई द वाई एक्सेस शुड बी एक्सटेंडेड टू द नेगेटिव साइड आल्सो. सो एक्स एक्सेस पर यहाँ पर इनकम ही रहेगी, क्योंकि सेविंग आल्सो डिपेंड्स अपॉन इनकम. सो इसमें सबसे पहले
क्या देखा जाएगा? जब जीरो इनकम है तो जितनी कंजम्पशन है तो उसे कहते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन। तो ए इज ब्लिंकिंग हेयर। सो जितनी ऑटोनमस कंजम्पशन है सेविंग कर्व में उतनी ही माइनस ए पे हम ले लेंगे, यानी ओ ए डिस्टेंस सेविंग कर्व पर ओ माइनस ए हो जाएगा। सो इट इज ओ माइनस ए हेयर, यू कैन सी। सो ये डिस्टेंस जो है वहां पर पॉजिटिव साइड पर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और यहां पर उतना ही डिस्टेंस ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर रहेगा। देन सेकेंड पॉइंट हम लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं। दैट इज डी पॉइंट, कंजम्पशन कर्व वाले में डी पॉइंट, जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं। सो उससे ठीक नीचे यानी OQ लेवल इनकम पर इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं, तो जहां पर इनकम कंजम्पशन बराबर होंगे वहां पर सेविंग जीरो होंगी। सो OQ इनकम लेवल पर सेविंग विल बी इक्वल टू जीरो। सो हमने क्या करना है, ए पॉइंट और Q पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। सो दैट विल बी अवर सेविंग फंक्शन। दिस इज द सेविंग कर्व। सो दिस इज हाउ द सेविंग फंक्शन इज ड्रॉन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। सो कंजम्पशन फंक्शन के बेस पर हम सेविंग फंक्शन इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन कर्व। तो स्ट्रेट लाइन कर्व में हमें सिर्फ दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं। एक हमने पॉइंट लिया जहां पर ऑटोनमस कंजम्पशन ए थी, तो सेविंग फंक्शन में वो माइनस ए आ गया, और दूसरा पॉइंट लिया कि जहां पर सेविंग ज़ीरो है यानी इनकम और कंजम्पशन इक्वल हैं, तो वहां पर हमने सेविंग ज़ीरो लिया। तो इन दो पॉइंट्स को यदि हम एक्सटेंड करेंगे तो ये सेविंग फंक्शन बन जाएगा। रिमेंबर यहाँ पर हमने कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन ड्रॉ किया है, तो कंजम्पशन फंक्शन ऊपर बनेगा और सेविंग कर्व उसके ठीक नीचे बनेगा। देन सेविंग फंक्शन इज गिवन बाय माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। माइनस ए पॉइंट यहाँ पर है ही है कि जितना ऑटोनमस कंजम्पशन होगा वाई एक्सिस में उतना ही नेगेटिव यदि हम ले लेंगे, दैट इज माइनस ए प्लस वन माइनस बी। बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो अगर हम वन में से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम माइनस कर देते हैं, इट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो वन माइनस बी इज MPS। रिमेंबर वन माइनस बी इज MPS and y you know income. So saving is equal to minus a plus MPS y, यानी minus a plus marginal propensity to save multiply by income is the saving function. So you please remember this saving function and consumption function. So assignments for today, जैसे हमने कल 3 क्वेश्चन किए थे वैसे ही सेम क्वेश्चन हम सेविंग के साथ करेंगे कि व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, व्हाट इज फॉर्मूला, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, व्हाट इज फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन APS एंड MPS। इसमें 3 डिफरेंस लिखेंगे वैसे ही, मीनिंग का, फॉर्मूले का, और व्हाट डज इट शोज। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। थैंक यू वेरी मच। इस असाइनमेंट को जल्दी कर दीजिए। नेक्स्ट वी शैल स्टडी द इन्वेस्टमेंट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।